Good evening. Yesterday's problems for homework were problem number 19, 20, 23 and 24 from the class problems. Hopefully solve हुए. तुम्हारा वीडियो फ्रीज हो गया है. एक बार चाहो तो रीज्वाइन कर लो. So, problem number 19, Alpha Limited requires funds amounting to rupees 80 lakhs for its new project. To raise the funds, the company has the following two alternatives. To issue equity shares of rupees 100 each at par amounting to rupees 60 lakhs and borrow the balance amount at interest rate of 12% per annum. तो 60 lakhs का equity and 20 lakhs का debt वो issue करेंगे. Then to issue equity shares of rupees 100 each at par and 12% debentures in equal proportion, मतलब 40-40 का हो गया यहाँ पे. Identify the point of indifference between the available two modes of financing and state which option will be beneficial in different situation. So यहाँ पे अब क्या हो गया, EBIT minus interest, EBIT minus I1 into 1 minus T upon N1, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो वो लिखा नहीं, तो इसमें इसको सॉल्व किया तो 9,60,000 आ गया. अब इसमें which option will be beneficial at different situations, तो इसमें क्या होगा, up to rupees 9,60,000 plan 1 will be beneficial. ठीक है, so up to rupees 9,60,000 plan 1 will be beneficial, then at rupees 9,60,000 EBIT, both plans will be having same EPS, and we will be having indifference point. Then beyond rupees 9,60,000 EBIT, plan 2 will be better. Plan 2 will be better. Hope it's clear. ठीक है, then अब इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 20. प्रॉब्लम नंबर 20 में भी इंडिफरेंस पॉइंट ही कंप्यूट करना है. Xylose Limited is considering two alternative financing plans as follows. Equity shares of rupees 10 each, 8 lakhs. Preference shares of rupees 100 each, 4 lakhs. Then 12% debentures. अच्छा, इसमें ये 80,000 होने चाहिए थे शेयर्स. वो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एलिमिनेट हो जाएगा. 8 लाख रुपीस के हैं ना. ठीक है, सो बट वो 8 लाख रुपीस के
10 रुपीज वैल्यू के, तो ये 80,000 आना चाहिए। वो एलिमिनेट हो गया, फर्क नहीं पड़ा उससे, बट and the preference dividend will be coming 33,600 and the rate of preference dividend will be 8.40%. Is it clear? फिर इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 22। Problem number 22 में suppose that a firm has an all equity capital structure consisting of 1 lakh ordinary shares or rupees 10 per share. The firm wants to raise 2,50,000 to finance its investment and is considering 3 alternative methods of financing. So यहाँ पे 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स और रुपीज 10 है, तो 10 लाख का तो कैपिटल ऑलरेडी है और 2,50,000 का और रेज करना है। सो इक्विटी प्लान में इक्विटी शेयर्स के थ्रू, डेट प्लान में डिबेंचर्स के थ्रू एट 8% एंड प्रेफरेंस प्लान 3 में प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। And they are saying if the firms are EBIT after additional investment are 3,12,500 and tax rate is 50%, find the effect on earnings per share under the 3 different financing alternatives. So यहाँ पे हमने तीनों प्लान में अर्निंग्स पर शेयर कंप्यूट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हाईएस्ट अर्निंग्स पर शेयर हमारा कहाँ पे आ गया, ये आया प्लान 2 में जो डिबेंचर्स प्लान है। सो नॉर्मली डेट प्लान में ईपीएस हाईएस्ट होता है, ठीक है। नॉर्मली डेट प्लान में ईपीएस हाईएस्ट होता है, बट वहां पे रिस्क भी हाईएस्ट होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, ठीक है। देन इसके बाद में ये यहाँ पे ये क्लियर है, ये वैल्यूज आ गए। देन प्रॉब्लम नंबर 23, RPS company presently has 36 lakhs in debt outstanding, bearing an interest rate of 10%. It wishes to finance 40 lakhs expansion program and is considering 3 alternatives: additional debt at 12%, preferred stock at 11%, and the sale of common stock at rupees 16 per share. Sale of common stock मतलब equity shares. So equity shares at rupees 16 per share. The company presently has 8 lakh shares of the common stock outstanding and is in 40% tax bracket. If the EBIT are presently 15 lakhs, what would be earnings per share for three alternative assuming no immediate increase in profitability, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेजेंटली EBIT 15 lakhs है और वो पूछ रहे हैं कि कितना अर्निंग्स पर शेयर होगा एज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब एडिशनल फाइनेंसिंग लेने के बाद में भी इमीडिएटली कोई EBIT में चेंज नहीं होने वाला है। सो EBIT विल बी 15 lakhs ओनली, उसमें से लेस कर दिया इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग तो 3,60,000 ही है, एडिशनल 4,80,000 आ गया डेट प्लान में, देन EBT आ गया, टैक्स एट द रेट ऑफ 40% आ गया, EAT आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, नेट इनकम आ गया, देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग 8 lakhs है, एडिशनल अंडर इक्विटी प्लान 2,60,000 आएंगे। इसमें सिर्फ वो जो ध्यान में देने वाली चीज थी वो ये था, उन्होंने लिखा था एज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी,
कि प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देन अब इसके बाद में ये हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो अर्निंग्स पर शेयर है वो हाईएस्ट कहाँ पे है, अंडर इक्विटी प्लान, ठीक है। देन इसके बाद में बी पार्ट के लिए डेवलप एन इंडिफरेंस चार्ट फॉर 3 ऑल्टरनेटिव, व्हाट आर अप्रोक्सीमेट इंडिफरेंस पॉइंट। उन्होंने तो वो अप्रोक्सीमेट चार्ट से निकालने को बोला है, बट हमने कंप्यूट कर लिए, ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट। सॉरी, हाँ, indifference point that in common, which alternative do you prefer। हाँ, अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर हमारे को चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन जो हमारी होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे को व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस कवरिंग 2 पॉइंट्स, ठीक। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे को 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक। अगर तुम्हारे को ग्राफ ड्रॉ करना है, इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 2 पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एक आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा आता है इंडिफरेंस पॉइंट। तो यहां हमने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। एंड एक्चुअल में ये एग्जाम में इस फॉर्म में, क्योंकि ये पुराने मटेरियल में ये क्वेश्चन था, ठीक है, दैट वाज वो सॉल्व करके दिया था एग्जाम में। एज इट इज तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट फिर भी ठीक है। सो इसमें 2 पॉइंट जब तक नहीं आएंगे तब तक तुम जो है ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। तो उसके लिए हमारे को चाहिए होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इनडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाल लिया हमने, डेट प्रेफरेंस एंड, हाँ, अच्छा, ये जो है ये फॉर्मूला फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का हमने शायद लिखा नहीं था। मतलब व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज 0। तो क्या करा, एक्स हो गए हमारी ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट करा, इंटू 1 माइनस टी करा तो ईएटी आ गया, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड किया तो ये नेट इनकम आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पुट दैट इक्वल टू 0, you will be getting the financial break even point, ठीक है। तो इसमें हमारे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स आ गए, डेट प्लान में 8,40,000, प्रेफरेंस प्लान में 10,93,333 एंड इक्विटी प्लान में 3,60,000, ठीक। देन इसके बाद में इन डिफरेंस पॉइंट भी कंप्यूट कर लेंगे।
इन डिफरेंस पॉइंट्स आ गए हमारे पास। एक्स का 23,76,000, सॉरी मतलब डेट और इक्विटी प्लान का, और प्रेफरेंस और इक्विटी प्लान का 34,40,000 आ गया। एंड फॉर डेट एंड प्रेफरेंस प्लान वहां पे इन डिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अच्छा फिर उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रिफर, हाउ मच ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। सो इंडिफरेंस पॉइंट के पहले इक्विटी प्लान बेटर होगा, इंडिफरेंस पॉइंट पे दोनों सेम होंगे, और इंडिफरेंस पॉइंट के बाद में डेट या प्रेफरेंस प्लान जो भी होगा वो बेटर होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक्स एक्सिस पे ईबीआईटी हो गया, एक्स एक्सिस पे ईबीआईटी हो गया, एंड वाई एक्सिस पे ईपीएस हो गया। एंड हमारे पास कितना आया था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये 3,60,000 पहला। इक्विटी प्लान का बताओ, इक्विटी प्लान का। नहीं नहीं नहीं, सबसे कम उसका ही होगा, 3,60,000, फिर 8,40,000 एंड 10,93,333। ठीक है, सो मैं रफ ड्रॉ कर दे रहा हूं इसमें, ठीक है। सो ये 3,60,000, 10 लाख, नहीं इसके बाद में इसका डबल से ज्यादा, 8,40,000, और ये है 10,93,000, 10,93,333। ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट कितना आया था पहला इक्विटी और डेट का? अच्छा, 23,76,000।
देन उसके बाद में अब ये थोड़ा बहुत, अब ये तो रफ ड्रॉ करा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, स्केल एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। 34,40,000। ये है हमारा इक्विटी प्लान। ये है डेट प्लान, डेट प्लान, और ये है प्रेफरेंस प्लान। ठीक है। Then after this, problem number 24. Carol Limited considering three financing plans. The key information is as follows. Total investment to be raised rupees 2 lakhs. Plans for financing proportion plan. Sorry. ये 25th पड़ गया. Sorry. Mercury Limited is setting up a project with capital outlay of 60 lakhs. It has two alternatives in financing the project. Alternative 100% equity finance. Alternative 2, debt and equity ratio 2:1. The rate of interest payable on debt is 18% per annum. Corporate tax rate is 40%. Calculate the indifference point between the two alternative methods of financing. So alternative 1 में पूरा 60 इक्विटी, alternative 2 में इक्विटी प्लस डेट आ गया। अब उसमें वैसे तो डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, या ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट करके फिर वैसे कर लो, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते। इट इज रुपीज 10,80,000। बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन यहाँ पे? कोई डाउट नहीं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस हम क्या करते हैं, वी कम टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज विद टैक्सेस। ठीक है, लोग हमने एक अजम्पशन लिया हुआ है। कॉमन अजम्पशंस में कितने अजम्पशंस थे हमारे टोटल? कॉमन अजम्पशंस हमारे कितने थे? 8 अजम्पशंस थे, ठीक है, 8 अजम्पशंस थे। एंड 8 अजम्पशंस में हमारा जो एक कॉमन अजम्पशन था, वन ऑफ द कॉमन अजम्पशन वाज दैट, चलो एक बार सारे ही रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। टू टाइप ऑफ कैपिटल, डेट एंड इक्विटी। देन इसके बाद में फिक्स कैपिटल एम्प्लॉयड, इवन दो द कैपिटल स्ट्रक्चर कैन चेंज। देन थर्ड वन इज firm is having positive net income. Then
इसके बाद में all the net income will be distributed as dividend, then after this there are no taxes. ठीक है. So one of the assumptions that we are having, जो हमने लिया था, that there are no taxes. ठीक है. Then it is assumed that capital markets are perfect and behavior of investors is rational and cost of debt is less than cost of equity. हाँ. So what is here, यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो एक assumption है, जो हमारा फिफ्थ assumption है, that we are assuming that there are no taxes. ठीक है. So क्या हुआ कि ये जो assumption था मॉडिग्लियानी एंड मिलर में, ये जो assumption था कि we are assuming that there are no taxes, it was criticized. ठीक है. सो ये जो था assumption कहाँ पे दिया गया, it was given, मतलब ये विदाउट टैक्सेस के साथ में 1958 में ये M&M थ्योरी दी गई. ठीक. फिर इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि यू आर एज्यूमिंग दैट देयर आर नो टैक्सेस, वेयर एज द प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज हैविंग द टैक्सेस. कोई कंट्री ऐसा है नहीं जहां पे टैक्सेस है नहीं. ठीक है. अगर हम बात करें कि दुबई मॉडल, वहां पे पर्सनल टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम्स नहीं है. ठीक है. वहां पे पर्सनल इनकम पे टैक्स नहीं है, बट फिर भी कॉर्पोरेट्स पे टैक्स है, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली. ठीक. सो व्हाट इज हियर कि इसको जब ये क्रिटिसाइज हुआ तो उसमें उन्होंने 1963 में इसको अमेंडमेंट किया. अपनी ही जो थियरी थी उन्होंने उसको अमेंड किया, उन्होंने टैक्सेस एज्यूम कर लिए. अब जब हम टैक्सेस एज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे हमारी थियरी में डिफरेंस आ जाएगा. इज इट क्लियर, गॉट दिस? ठीक है. सो यहां पे अब हमारे को उसमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, थ्रू दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर टैक्सेस है तो पोजीशन हमारी कैसे बदलेगी. गॉट इट? सो कम टू प्रॉब्लम नंबर 28. एंड रिमेंबर वन थिंग कि ये जो हमारा मॉडिग्लियानी मिलर थ्योरी विदाउट टैक्सेस एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों एक ही जैसे होंगे, क्योंकि प्रिंसिपली थ्योरी तो एक ही है. ठीक है. बट थोड़ा सा डिफरेंस है अप्रोच में. प्रॉब्लम नंबर 28. क्योंकि मैं बिना डेटा के समझाऊंगा तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, प्रॉब्लम के साथ में सॉल्व करके लेंगे तो हमारा वो दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. चलो इसमें एक और चीज पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं. हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है या मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच है, व्हाट इट इज. दोनों थ्योरी ने एनओआई अप्रोच या मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच यहाँ पे हमारे को बताती क्या है कि दैट वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से वैल्यू ऑफ फर्म में चेंज नहीं होता है, बट नेट इनकम अप्रोच में चेंज होता है. नेट इनकम अप्रोच में चेंज होता है. नेट इनकम अप्रोच के हिसाब से एज यू इंक्रीज द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है. एंड वी विल बी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म वेयर देयर इज मैक्सिमम डेट. ठीक है.
So what they are saying, giving here is company X and company Y are identical in all respect including risk factor except debt equity mix. मतलब operating risk same है, but because debt equity mix will be changing, so financial risk will be different. ठीक है, so same है, identical है in all respect including risk factor except debt equity mix. So बाकी इसका मतलब क्या हो गया, nature and size of business is same. If the nature and size of business is same, it means the operating risk will be same. But what is different? Different is the debt equity mix. मतलब जो capital structure है वो different है. And because capital structure is different, so what is going to happen? Their financial risk will be different. X having issued 10% debentures for rupees 18 lakhs while Y has issued only equity. ठीक, सो जो कंपनी एक्स है उसमें डेट इक्विटी दोनों है एंड वाई में सिर्फ इक्विटी है. बोथ कंपनीज अर्न 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड देयर टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज 30 लैक्स. सो यहाँ पे 30 लैक्स पे 20% दोनों अर्न कर रहे हैं, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 30%, सॉरी 20%. सो 30 lakhs का 20% is going to be rupees 6 lakhs. So EBIT for both the companies is going to be rupees 6 lakhs. Assuming tax rate of 50%, capitalization rate of 15% for an all equity company. It means the K is given 15%. K is given 15% and for all equity company the KO will also be same. ठीक है, then अब इसमें compute the value of companies X and Y under net income approach, net operating income approach. ठीक, so अब यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास दो कंपनीज आ गई, इसमें हम हेडिंग डाल लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज विद टैक्सेस. कैपिटल structure theories with the taxes. Capital structure theories with taxes. ठीक है, सो ये हमारे पास अब जो आ रही हैं ये कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज विद टैक्सेस आ गया. ठीक है, अब इसमें हमारे को फर्स्ट क्या कंप्यूट करना है, वैल्यू ऑफ फर्म. पहले नेट इनकम अप्रोच में कंप्यूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कंप्यूट. सो राइट, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म. Computation of value of firm using net income approach. Using net income approach. So यहाँ पे हम क्या लेंगे, particulars company X and company Y. So we are going to take particulars, then company X and company Y. जो हमारी कंपनी X है ये है लीवर्ड कंपनी, इसमें डेट है. लीवर्ड कंपनी and this is unlevered company. ठीक, सो व्हाट इज लीवर्ड कंपनी, जिसमें फाइनेंशियल लिवरेज होता है वो लीवर्ड कंपनी कहलाती है, जिसमें फाइनेंशियल लिवरेज नहीं होता है वो अनलीवर्ड कंपनी कहलाती है. देन अब यहाँ पे दे आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, वो सेम है इन एवरी रेस्पेक्ट. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे होगा क्या,
उन्होंने क्या बोला है कि उनके जो टोटल एसेट्स है मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30 lakhs एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%. सो इससे हम क्या कंप्यूट करेंगे, ईबीआईटी. ईबीआईटी इज 30 lakhs into 20%. 30 lakhs into 20%, that comes to rupees 6 lakhs. एंड ये दोनों कंपनीज में रहेगा. ईबीआईटी विल बी 6 lakhs. एंड ये भी हमने एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. सो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है तो वो सेम रहेगा. नाउ इसमें अब हम इससे क्या माइनस करेंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट. अब यहां लेस किया इंटरेस्ट. जो एक्स लिमिटेड है, जो हमारी कंपनी एक्स है, इसने डेट इशू किया है कितने का, 18 lakhs का. एंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. So this is 1,80,000 and here it is dash. So इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, we are going to have the EBT. So right, therefore EBT कितना आ गया, 4,20,000 एंड यहां पे आ जाएगा 6 lakhs. यहां आ गया 6 lakhs. अब इसमें से टैक्स एट द रेट ऑफ 50%. So less tax rate is given 50%, so tax at the rate of 50%. Tax at the rate of 50%, so 50% of 4,20,000 ही आ जाएगा 2,10,000 एंड यहां पे आ जाएगा 3 lakhs. So from this we are going to get is earnings after tax. इससे हमारे पास आ गया earnings after tax will be 2,10,000 and 3 lakhs only. Earnings after tax, it is 2,10,000 and 3 lakhs. ठीक है. नाउ व्हाट इज हियर, जब हम यहाँ पे बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच में, ठीक है. सो नेट इनकम अप्रोच के केस में होता क्या है कि हमारा केडी एंड केई, हमारा इसमें स्टैंडर्ड मतलब जो एडिशनल अजम्पशन था वो क्या था, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव चेंज इन कैपिटल. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑल इक्विटी कंपनी मींस जो कंपनी वाई है उसका अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, देन कंपनी एक्स का भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% ही होगा. इज इट क्लियर? एंड दैट इज वाई मैंने बार बार रिपीट किया था कि अजम्पशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, एज अ थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वो तो सही है, बट प्रैक्टिकल सॉल्व करते टाइम पे विल हैव टू यूज देम. इज इट क्लियर? सो ये जो है हम नोट वापस से लिख लेंगे, वापस से नोट लिख के ले लेंगे. नाउ यहाँ पे लेस, यहाँ पे हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी लेस नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये हमारा जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, यही हमारा नेट इनकम हो गया क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है. नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी इन ब्रैकेट के, इट इज 15%, दोनों के लिए 15%. ठीक, ये क्यों है 15%? एक पांच छह लाइन ब्लैंक छोड़ दो एंड राइट हियर
So right, as it is given in the problem, as it is given in the problem that company Y, company Y, which is all equity company, all equity company is having capitalization rate, capitalization rate of 15%, which means which means means its KE is 15%, and as per net income approach, as per net income approach, KE and KD, KE and KD remain constant irrespective of change in capital structure, in capital structure. Therefore, KE for company X should also be 15%, should also be 15%. होप इट्स क्लियर गॉट दिस. सो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कंपनी Y का KE 15% है, देन एज पर नेट इनकम अप्रोच KE रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर इसका 15% है तो कंपनी X का भी 15% होना ही चाहिए. देन फ्रॉम दिस वी गेट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, value of equity, it is net income divided by KE. So 2,10,000 divided by 15%, 2,10,000 divided by 15%. एक मिनट, हाँ एक मिनट. हाँ काका. स्टार्ट करें. सो व्हाट इज ईयर, यहाँ पे 2,10,000 डिवाइडेड बाय 0.15 कितना 14 lakhs आया था ना ये. सो दिस इज 14 lakhs. देन इसके बाद में फॉर 3 lakhs डिवाइड बाय 15% कम्स टू 20 lakhs. देन इसमें हम ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ डेट, ऐड वैल्यू ऑफ डेट, इट इज 18 lakhs एंड यहाँ पे डैश. सो इससे क्या जाएगा हमारे पास में, वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म ये हो गया 32 lakhs.
एंड दिस इज 20 lakhs. सो नेट इनकम अप्रोच में क्या था कि जो लीवर्ड कंपनी होगी जिसमें डेट होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, जिसमें डेट नहीं होगा उसका वैल्यू कम होगा. ठीक है, दैट वाज द थ्योरी. सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये सही आ रहा है. टैक्सेस हो नहीं हो, वैल्यू ऑफ द फर्म विच इज हैविंग डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी हायर. ठीक है, देन अब इसके बाद में we come to next one, net operating income approach with taxes. ठीक है, so right, net operating income approach, net operating income approach in bracket M&M approach with taxes. With taxes. ठीक है, सो यहाँ पे पहले एक नोट लिख के ले लेते हैं. जो हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है या फिर एमएनएम थियरी है, विदाउट टैक्सेस वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन कांस्टेंट irrespective of change in capital structure. So right, as per net operating income approach or M&M theory without taxes, value of firm remain constant irrespective of change in capital structure. ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या हो गया कि ये तो हमारी जो नॉर्मल थियरी थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच या मॉडिग्लियन मिलर अप्रोच, इसमें विदाउट टैक्सेस द वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर. बट अब अगर हमारे टैक्सेस होंगे तो क्या? ठीक है, अब यहाँ पे अगर टैक्स होगा तो उसकी वजह से क्या फर्क आएगा? फर्क कहां पे आएगा? फर्क आएगा टैक्सेशन में. Look, if we see यहाँ पे इस केस में, इन केस ऑफ द कंपनी एक्स, जहां पे हमारा डेट है कैपिटल स्ट्रक्चर में, यहां हमारा टैक्स कितना है? टैक्स है 2,10,000. इन केस ऑफ द कंपनी वाई विच इज नॉट हैविंग द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यहां पे हमारा डेट है कितना? 3 lakhs. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कितना? दिस डिफरेंस इज 90,000. ठीक, 3 lakhs में से 2,10,000 माइनस किया तो ये जो डिफरेंस है ये 90,000 है. ये क्या है? ये कहलाता है सेविंग्स इन टैक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं टैक्स शील्ड. ठीक है,
तो अब क्या होगा कि when you are having debt in capital structure, तो जो अनलीवर्ड कंपनी है जिसमें डेट नहीं है उस कंपनी को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पे अगर मैं अदरवाइज सोच के देखूं तो होता क्या है कि जो हमारी ईबीआईटी है, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जो हमारा ईबीआईटी है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाता है, ईबीआईटी में से क्या होगा, इंटरेस्ट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईबीटी आ जाएगा। ईबीटी में से हमारा टैक्स चला जाएगा एंड जो बचेगा वो होगा नेट इनकम। नेट इनकम हम प्रेफरेंस शेयर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ये किसको जाएगा, दिस विल गो टू द प्रोवाइडर्स ऑफ डेट। ये जो टैक्स है ये किसको जाएगा, दिस विल गो टू द गवर्नमेंट। एंड ये जो नेट इनकम है ये किसे जाएगा, दिस विल गो टू प्रोवाइडर्स ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं किसको, प्रोवाइडर्स ऑफ डेट को, तो उसके बदले में हमारे को कैपिटल मिलता है ना। कौन सा कैपिटल मिलता है, डेट कैपिटल मिलता है। जब हम प्रोवाइडर्स ऑफ इक्विटी को नेट इनकम या फिर डिविडेंड पे करते हैं उसके बदले में हमारे को मिलता है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल, ठीक। और जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो उसके बदले में हमारे को गवर्नमेंट क्या देती है, कोई कैपिटल देती है, कुछ मिलता है उसके बदले में। उसके बदले में बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। ठीक है, कुछ नहीं मिलता, सरकार कुछ नहीं देती। यहां पे हमारा कोई भी कैपिटल नहीं मिलता, नो कैपिटल। ठीक, इज इट क्लियर? सो इससे अब यहां क्या होगा, जितना ज्यादा तुम सरकार को पे करोगे टैक्स, उतनी तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। डेट पे इंटरेस्ट पे करने से जो डेट है, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट पे करो बट उसके बदले में भी कैपिटल मिल रहा है ना। इक्विटी है उसके बदले में तुम डिविडेंड पे कर रहे हो बट कैपिटल मिल रहा है ना। बट जो सरकार है उसको जब हम टैक्स पे करते हैं तो उसके बदले में कोई भी कैपिटल नहीं मिलता। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जितना तुम सरकार को ज्यादा टैक्स पे करोगे उतना तुम्हारा कैपिटल का लॉस हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो अगर हम टैक्स बचा सकते हैं देन इट इज गुड। अगर हम टैक्स बचा सकते हैं तो ये हमारी फर्म के लिए अच्छा होगा। एंड इसी वजह से हर कंपनी ये कोशिश करती है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम आए। एंड कोई भी तुम अगर देखोगे हर किसी की कोशिश होती है कि वो कम से कम टैक्स पे करे एंड उसके लिए कुछ ना कुछ करके कोशिश करते ही है कि वो टैक्स लायबिलिटी कम हो पाए। ठीक, सो अब यहां पे क्या हो गया कि अब इस सिचुएशन में व्हाट वी विल बी हैविंग कि यहां पे अगर हमारे टैक्सेस हैं, अगर टैक्सेस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं। तुम्हारा इंटरेस्ट हो या फिर डिविडेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू विल रिमेन सेम। बट if you are having taxes, then the firm which is having debt in capital structure will pay interest, and because of the payment of interest there will be savings in tax, जिसको हम बोलते हैं टैक्स
शील्ड, वहां पे टैक्स की बचत होगी। बट जिस कंपनी में डेट नहीं है उस कंपनी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके पास से अगर हम अपनी सिचुएशन ले तो 90,000 हर साल सरकार को चला जा रहा है, जिसके बदले में सरकार हमारे को डायरेक्टली कुछ नहीं दे रही। ठीक, अगर दे भी रही है तो सबको बराबर दे रही है ना, कि ठीक है हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सड़कें मिलती हैं, पुलिस मिलती है, मिलिट्री मिलती है। बट जो टैक्स नहीं पे करता उसको भी तो वही सड़क मिलती है, उसको भी तो वही पुलिस मिलती है, उसको भी तो वही मिलिट्री मिलती है। सो टैक्स देने वाले को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज हियर, यहां पे अब क्या आ गया, राइट। बट if we are having if we are having taxes, then firm which is having debt in capital structure, in capital structure, सो जिस कंपनी में डेट होगा इन कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज लीवर्ड कंपनी। लीवर्ड कंपनी will will be saving the tax, will be saving the tax, in bracket write tax shield, tax shield, due to due to payment of interest, payment of interest, therefore it should have more value, more value as compared to the company which is not having any debt, in capital structure, in bracket write unlevered company, unlevered company। ठीक है, अब यहां पे जो हमारी वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी होगी वो कैसे आएगी, सो राइट देयरफॉर वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी in bracket VL is equal to value of unlevered company bracket VU plus D into T, where D is value of debt,
value of debt. E is value of equity, value of equity, and value of levered company. So value of unlevered company पहले निकालेंगे, value of unlevered company, that is bracket में VU. This will be equal to EBIT into 1 minus T, क्योंकि यहाँ पे अनलीवर्ड कंपनी में इंटरेस्ट तो होगा नहीं, सो डायरेक्टली EBIT पे ही टैक्स लगेगा, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल Q. ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे आया पिछले पार्ट में देखते हैं इसमें, हाउ इट इज देयर. ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर मैं अनलीवर्ड कंपनी में देखूं, ठीक, सो अनलीवर्ड कंपनी में EBIT है, इसमें से इंटरेस्ट तो है नहीं, तो डायरेक्टली EBIT पे ही टैक्स लग रहा है. सो EBIT इंटू 1 माइनस टी विल बी EAT. ठीक, दिस डिवाइडेड बाय, इस केस में जब अनलीवर्ड कंपनी है KE एंड KO विल बी सेम. सो इसका KE अगर 15% तो KO भी 15% है. सो EBIT into 1 minus T divided by 15%, this is 20 lakhs, this is you have got. ठीक है, वहां पे तो हम निकाल ही चुके हैं. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कंपनी Y जो हमारे पास में है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कंपनी Y, कंपनी Y, कंपनी Y है हमारी अनलीवर्ड कंपनी, unlevered company. So this is EBIT into 1 minus T upon KO. So EBIT कितना है इनका 6 lakhs है, into 1 minus 0.50 divided by KO is 15%. So ये कितना आ गया, this is coming 20 lakhs. This is 20 lakhs. ठीक है, सो यहाँ पे नोट, राइट द नोट as company Y is all equity company, therefore its KE and KO will be same, that is 15%, that is 15%. ठीक है, लोग ये हम वैसे तो पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, बट अगर पिछला पार्ट पूछा ही नहीं होता तो हमारे को डायरेक्टली यहीं पे ही कंप्यूट करना पड़ता, तो वैल्यू इसी तरीके से यहाँ हमारी आती. ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कंप्यूट करेंगे. तो इसमें वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी हमारे को निकालना है, दैट इज कंपनी X. सो राइट वैल्यू ऑफ कंपनी X in bracket levered company, this is value of unlevered company, that is company Y plus D into T, So from here what you will be getting is value of unlevered company Y की वैल्यू कितनी है, it is 20 lakhs, plus debt कितना है, it is 18 lakhs, and tax rate is 50%.
So from here you will be having 20 lakhs plus 9 lakhs. This will be rupees 29 lakhs. So यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मॉडिग्लियानी मिलर थियरी या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में भी the company which is having debt in capital structure will be having more value as compared to unlevered company. ठीक है, because of savings in tax. Is this clear? Got this? ठीक है. Now अब इसके बाद में we come to problem number 32. Problem number 32 पे आता है. Problem number 32. क्या दिया हुआ है? There are two forms P and Q which are identical except P does not use any debt in its capital structure while Q has 8 lakh 9% debentures in the capital structure. Both the firms have earnings before interest and tax of 2,60,000 and capitalization rate is 10%. ठीक है. Assuming the corporate tax rate of 30%, calculate the value of these firms according to M&M hypothesis. So जो हमने कैलकुलेशन करा है वो वैसा ही होगा. ठीक है. तो यहाँ पे पहले हम कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी निकालेंगे, दैट इज पी. उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय KO. एंड उन्होंने कैपिटलाइजेशन रेट 10% दिया है, तो अनलीवर्ड कंपनी का KE हो या KO हो वो दैट विल रिमेन सेम. सो दैट विल बी, वहां से हमारे पास वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी. फिर उसके बाद में वी आर गोइंग टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी दैट इज VQ एंड दैट विल बी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस D इंटू टी. ठीक है. सो यहां पे ये जो D इंटू टी है दैट इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड है. ठीक, यहां पे हमारा जो डिफरेंस आया, अगर तुम इसको समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हमारा हर साल कितना टैक्स में सेविंग हो रही थी? 90,000 की. कितनी सेविंग हो रही थी? 90,000. ये सेविंग एक ही साल थोड़ी ना होगी. जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी तो जो कंपनी एक्स है उसमें 90,000 रुपए की सेविंग होती रहेगी टिल इन्फिनिटी. ठीक है. सो 90,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टिल इन्फिनिटी. तो यहां पे कितनी टोटल सेविंग हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी निकालेंगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट. चलो एक काम करेंगे, क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक काम करो रिकॉल कर लेना क्योंकि अभी फाउंडेशन में चला गया है, या मैं एक बार रिकॉल करवाऊं? मैं एक बार फास्ट रिकैप करवा दूंगा कल, क्योंकि हमारे को आगे ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आगे हमारे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है. सो वहां पे हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट यहां पे होगा 10%, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट. सो 90,000 डिवाइडेड बाय 10% करोगे तो वो आ जाएगा 9 lakhs. अगर मैं 90,000 डिवाइडेड बाय 10% करता हूं, सो 90,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो ये 9 lakhs. तो जितना मेरी टैक्स में बचत हो रही है उतने से मेरी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी. यही 9 lakhs. आया लॉजिक समझ में? यहां पे भी होनी चाहिए थी तो वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, बट क्योंकि इंटरेस्ट के पेमेंट की वजह से टैक्स बच गया, तो जितना हमारा टैक्स बचता चला जाएगा टिल परपीचुइटी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, एंड उससे हमारी जो लीवर्ड फॉर्म है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक. चलो अब इसमें आ जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 32 पे. सो राइट वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी. लीवर्ड कंपनी in bracket VP
is equal to EBIT into 1 minus T divided by KO. EBIT into 1 minus T divided by Q. So EBIT is given 2,60,000. Tax rate is given 30% into 1 minus 0.30 divided by capitalization rate is given 10%. So divided by 10%. बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, 18,20,000. So this value is 18,20,000. Then अब इसके बाद में हम क्या कंप्यूट करेंगे? We are going to compute the value of levered company, that is VQ. So write value of levered company VQ. This is value of unlevered company. अच्छा ये सॉरी, इसमें यहाँ पे ये अनलीवर्ड था, वो बोला तो अनलीवर्ड, ये है हमारा अनलीवर्ड. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, this is VP plus D into T, and that will be value of unlevered company VP, this is 18,20,000 plus value of debt कितना है? 8 लाख है. Tax rate is 30%. Tax rate is 30%. So this is 18,20,000. 8 3s are 24. So it is 2,40,000. And this will be rupees 20,60,000. This is 20,60,000. बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन है यहाँ पे? होप इट्स क्लियर. ठीक, चलो एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर. कंसेप्ट वाइज हमारा सब हो गया है. काम करेंगे इसके बाद में एमसीक्यूज ले लेते हैं और मैं बाकी प्रॉब्लम्स होमवर्क को दे देता हूँ. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू एमसीक्यूज. MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, सो अब क्वेश्चन 1. The assumptions of M&M hypothesis of capital structure do not include the following. Capital markets are imperfect. Investors have homogeneous expectation. All firms can be classified into homogeneous risk class. The dividend payout ratio is 10% and there is no corporate tax. इसमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है? मतलब कौन सा इसमें से अजम्पशन नहीं है? हाँ, कैपिटल मार्केट्स आर इम्परफेक्ट बिकॉज वहां पे अजम्पशन है दैट कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट. ठीक है, अब ये जो सेकंड है बाकी भी मैं एक्सप्लेन, क्योंकि क्या है वर्डिंग्स थोड़े से वो डिफरेंट हो जाते हैं जब वो टेक्निकल उसमें लिखते हैं. हमने तो सिंपल लैंग्वेज में लिखी है चीजें. ठीक है, सो इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन. ठीक है, हमने लिखा था बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स इज रैशनल, तो उनका जो सेम एक्सपेक्टेशन है
और सेम रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। देन ऑल फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस रिस्क क्लासेस, मतलब जो दो फर्म है उनकी रिस्क सेम हो सकती है, ठीक है। हम हर जगह पे लेते थे ना ऑपरेटिंग रिस्क सेम है, ठीक है। सो दे आर बिलोंगिंग टू सेम सेम बिजनेस रिस्क क्लास। सेम बिजनेस रिस्क क्लास मतलब होमोजीनियस, एक जैसा रिस्क क्लास हो सकता है। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, मतलब ऑल द नेट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। देन अब इसके बाद में नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज irrelevant for optimal capital structure? Flexibility, solvency, liquidity, control. शुरुआत में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए डिस्कशन किया था। तीन चीजें थी, रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल, ठीक है। इसमें कहीं पे भी सॉल्वेंसी नहीं थी, ठीक है। लिक्विडिटी थी, मतलब अगर हम बात करते हैं रिस्क जो है, रिस्क किस पे डिपेंड करता है, लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंट्रोल है, ठीक है। कॉस्ट है, ठीक है, यहां पे कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, बट फ्लेक्सिबिलिटी तो कैपिटल स्ट्रक्चर की है ही ना, यू कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहां पे क्या चीज नहीं थी, वो है सॉल्वेंसी नहीं है। इज इट क्लियर, ठीक। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज बी। देन इसके बाद क्वेश्चन 3 में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिफर्स टू all financial resources, short term fund, long term fund, none of these. हाँ, सो इसमें क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए इसका आंसर, थर्ड का ए। देन इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ, ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर evaluating the effect of business risk on EPS. Then second, examining EPS result for alternative financing plan at varying EBIT levels. Then determining the uh, impact of change in sales on EBIT, showing the changes in EPS quality over time, ठीक है। तो अब इस केस में यहां क्या करना होगा, कौन सा है आंसर, पहला तुम बताओ। फर्स्ट है, कैसे कैसे एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क ऑन ईपीएस, क्या करते थे हम, हाँ निकालते थे, हाँ। उसमें कहां पे इस, ये जो हमारा ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस पे ईबीआईटी है, वाई एक्सिस पे ईपीएस है, ठीक। तो क्या हो रहा है, इसमें कहीं बिजनेस रिस्क की बात हो रही है, ऑपरेटिंग रिस्क की, बिजनेस रिस्क मतलब ऑपरेटिंग रिस्क, वो तो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं ना। हम यहां पे क्या मान के चलते हैं, द कंपनीज आर बिलोंगिंग टू सेम बिजनेस रिस्क क्लास, ठीक। तो पहला वाला तो नहीं है, अब चलो ठीक है, दूसरे को छोड़ते हैं। तीसरा, डिटरमाइनिंग द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ईबीआईटी, तो क्या सेल्स और ईबीआईटी के बीच में ग्राफ है, नहीं। शोइंग द चेंजेस, डी वाले में शोइंग द चेंजेस इन ईपीएस क्वालिटी ओवर टाइम, क्या टाइम और ईपीएस के बीच में ग्राफ है ये, नहीं। तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता,
चलो बी सोचते हैं, एग्जामिनिंग ईपीएस रिजल्ट फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स एट वेरिंग ईबीआईटी लेवल। तो ग्राफ किसके बीच में, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में है ना, ठीक है। सो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा है, बी है। तो एक्चुअल में एमसीक्यूज जो हैं थोड़े ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं एज कंपेयर टू द जो हमारे नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं उसके कंपैरिजन में। नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम नंबर 5। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मींस लॉन्ग टर्म डेट, प्रिफर्ड स्टॉक एंड इक्विटी शेयर्स। सही लगता है ये? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर्स इक्विटी। देखो बी सी डी तो है ही नहीं ना, तो क्या है, ए ही है। देन इसके बाद में कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन बैंक्रप्सी कॉस्ट, एजेंसी कॉस्ट। अच्छा, इसमें ये एक हमारा एक एजेंसी कॉस्ट का एक्चुअल में कंसेप्ट रह गया था। लुक बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, तो कंपनी को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट लगता है। अब मैनेजमेंट में तुम लोग हायर करोगे, वो फ्री में तो आएंगे नहीं ना, ठीक है। कंपनी के केस में बेसिकली एजेंसी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी टीम। अब वो जब काम करते हैं तो हमारे को उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है ना। So the board of directors means directors, they are basically the agents of, किसके एजेंट होता है, शेयर होल्डर्स के एजेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स में खुद के पास में उतनी एक्सपर्टीज हो या नहीं हो जरूरी नहीं है ना। सो दे अपॉइंट देयर एजेंट हु रन द बिजनेस ऑन देयर बिहाफ, और उसके बदले में वो उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है। सो ये जो कॉस्ट है ये कहलाती है एजेंसी कॉस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन, बैंक्रप्सी कॉस्ट नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी कॉस्ट। सो इसमें जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी सी, एजेंसी कॉस्ट। ठीक है। देन अब इसके बाद में सेवंथ में, द ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म assumes that overall capitalization rate changes in the financial leverage, then that there is optimal capital structure, then the total risk is not changed with the changes in the capital structure, the that the markets are perfect। एक्चुअल में लास्ट वाला तो होता है मार्केट्स आर परफेक्ट, वो वैसे तो एजम्पशन में आ ही जाता है, बट बेसिकली यहाँ पे जो हमारा नेट इनकम अप्रोच में उसमें क्या होता है, केडी एंड केई आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। एज वी इंक्रीज द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन एंड द वैल्यू ऑफ फर्म गोज अप, ठीक है। सो जो इसका ए वाला जो पार्ट है वो ज्यादा सही है। इसमें एक्चुअल में डी भी हो जाता है, बट हमारे पास में जो आंसर्स हैं मोर देन वन आंसर वाला तो पार्ट इसमें है नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज ईयर, अब यहां पे इसमें कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, दैट ऑल अजम्पशन आल्सो गोज, वो वाला भी सही है, मार्केट्स आर परफेक्ट। बट फिर भी जो इसमें प्रैक्टिकली जो बेसिक कंसेप्ट है नेट इनकम अप्रोच का, वो ए वाला है कि जैसे जैसे हम डेट बढ़ाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी कमिंग डाउन, ठीक। वैसे इसमें ए और डी दोनों सही है, डी भी गलत नहीं है।
देन मार्केट वैल्यूज आर ऑफन, अब इसके बाद में 8th वाले क्वेश्चन में व्हाट इज ईयर मार्केट वैल्यूज आर ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज ये एक्चुअल में हम जो WACC का कंसेप्ट है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी इसमें यहाँ पे मार्केट वैल्यूज आर ऑफन यूज्ड इन कंप्यूटिंग WACC बिकॉज this is the simplest way of doing calculation. This is consistent with the goal of maximizing shareholders value. This is required by SEBI. This is very common mistake. ठीक है, सो अब इसमें कॉमन मिस्टेक तो हो नहीं सकती क्योंकि हम WACC में मार्केट वैल्यूज यूज करते हैं. रिक्वायर्ड बाय सेबी तो 92 में बना, उसके पहले भी ऐसा यही करते थे हम. देन दिस इज अब बी ए पार्ट में दिस इज सिंपलेस्ट वे टू डू कैलकुलेशन. सिंपलेस्ट वे तो एक्चुअल में बुक वैल्यू वेट्स होता है, वो सिंपलेस्ट है, वो भी नहीं है, तो बचता है बी. दिस इज कंसिस्टेंट विद गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू. ठीक है, अभी ये ना डिटेल में मैं जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा ना तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हमने डिस्कस किया नहीं है कि मार्केट वैल्यू वेट्स बेटर है कि बुक वैल्यू वेट्स बेटर है. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन का सॉरी इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है. देन कैपिटल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म एज्यूम्स दैट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इन्फ्लुएंसेस द, क्या चीज को इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, सो अब इसमें अच्छा 9 है. हाँ, a firm's optimal capital structure is the debt equity ratio that result in minimum possible weighted average cost of capital. 40% debt, 60% equity. When debt equity ratio is 0.50, when the cost of equity is minimum. हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस में आया था? ट्रेडिशनल अप्रोच में आया था. ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसा होता था? पहले के वो कम होता है, फिर वो स्टेबल होता है और फिर उसके बाद में बढ़ता है. तो जहां पे हमारा ऑप्टिमम कहाँ पे होता है? ऑप्टिमम होता है उस पॉइंट पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम. और वैसे भी BCD इतने एब्सर्ड दिए हैं, 60%, 40% डेट, 60% इक्विटी है, तो क्वेश्चन में से आएंगे ना कहीं, तो ये कोई रिलेवेंस नहीं है इनका. तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर हो गया ए. देन अब इसके बाद में द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इन्फ्लुएंसेस, क्या चीज इन्फ्लुएंस करता है? रिस्क, रिटर्न, बोथ रिस्क एंड रिटर्न, रिटर्न बट नॉट रिस्क. कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या हमारा रिटर्न बदलता है? रिटर्न फर्क तो पड़ता है ना. रिटर्न पे फर्क पड़ता है, क्या रिस्क पे फर्क पड़ता है? रिस्क पे भी फर्क पड़ता है ना. ठीक है, रिस्क पे फर्क पड़ता है, रिटर्न पे भी फर्क पड़ता है. तो इसका मतलब यहां पे ए में वो कह रहे हैं कि सिर्फ रिस्क पे फर्क पड़ता है, बी में कह रहे हैं सिर्फ रिटर्न पे फर्क पड़ता है, सी में कह रहे हैं दोनों रिस्क और रिटर्न दोनों पे फर्क पड़ता है. तो सी वाला इज द करेक्ट आंसर. देन इसके बाद में क्वेश्चन 11. Consider below mentioned statements. A company is considered to be overcapitalized when its actual capitalization is lower than the proper capitalization as warranted by earning capacity. Both overcapitalization and undercapitalization are determined to the interest of the society. State true or false. ठीक है, सो इसमें यहां हमारे को क्या करना है? ट्रू फॉल्स बताना है. ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है? ठीक है,
अब क्या हो जाता है, ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट क्या हो गया कि कोई भी फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड है, मतलब कैपिटल जितना चाहिए उससे हमने ज्यादा कैपिटल रखा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड एज द ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हमने जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी उससे कम कैपिटल रखा हुआ है। तो जब हमारा अंडर कैपिटलाइजेशन होता है मतलब हम कम कैपिटल पे बिजनेस कर रहे हैं, सो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। गॉट इट। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कम रखा है और उस पर बिजनेस कर रहा है। जब ओवर कैपिटलाइजेशन होता है, ये हम जब आई विल एक्सप्लेन दिस मोर व्हेन वी विल बी डूइंग द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यहां पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। वहां पे हमारे को वो ढंग से प्रॉपरली समझ में आएगा, बिकॉज वहां पे हमारे पास में डेटा के साथ में क्वेश्चंस रहेंगे एंड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दोज थिंग्स वर्क। ठीक है। सो अब क्या हो गया कि ओवर कैपिटलाइज्ड और अंडर कैपिटलाइज्ड। ठीक है। सो द कंपनी, पहला स्टेटमेंट क्या है, कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी ओवर कैपिटलाइज्ड व्हेन एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है। सो एक अमाउंट अर्न करने के लिए हमारे को कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। हमने एक चीज पढ़ी थी यहां पे कि आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है? आरओआई कांस्टेंट है। ठीक। सो हमारे पास में एक इन जनरल हमारे पास में एक इंडस्ट्री का आरओआई होता है। तो अब अगर मेरे को जितना भी ईबीआईटी अर्न करना है तो उसके हिसाब से आई कैन कंप्यूट द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। कैसा हो सकता है इसमें? वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू दिस प्रॉब्लम नंबर 11 के हिसाब से ही यहां पे जो कैपिटल है इट इज ईबीआईटी डिवाइड बाय क्यू। ठीक। या फिर इसको हम ईबीआईटी डिवाइड बाय क्यू की जगह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? आरओआई इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? ईबीआईटी डिवाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो अब अगर यहां पे आरओआई सपोज इंडस्ट्री का है 15% से, ठीक, एंड अगर हम यहां पे 1,50,000 का ईबीआईटी अर्न करना चाह रहे हैं, टू अर्न ईबीआईटी कितना? ₹1,50,000। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड will be 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15%, सो ये आ जाएगा 10 lakhs। ये कहलाएगा प्रॉपर कैपिटल। इतना हमारे को कैपिटल लगना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है। सो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, जो प्रॉपर कैपिटल है, इंडस्ट्री का हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, तो हमारा भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% होना चाहिए। अगर मेरा टारगेट ईबीआईटी 1,50,000 है तो इस 1,50,000 का ईबीआईटी अर्न करने के लिए मेरे को 10 लाख रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा। दिस इज यू विल बी कॉलिंग एज द प्रॉपर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर मैं इस 10 लाख रुपीज से ज्यादा अगर मैं कैपिटल लगाता हूं तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन होगा, और इससे अगर मैं कम लगाता हूं तो ये अंडर कैपिटलाइजेशन होगा। आई बात समझ में? ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, ओवर कैपिटलाइजेशन का इंपैक्ट होगा क्या कि अगर मैंने 1,50,000 अर्न करने के लिए 15 लाख का कैपिटल लगा दिया,
तो मेरा ROI 10% हो जाएगा, मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। और अगर मैं अंडर कैपिटलाइज करता हूं, से 5 लाख रुपए लगा के भी मेरे को EBIT सपोज मिल गया 1,50,000 का, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, बट मेरी स्ट्रक्चरल रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर नहीं प्रॉपरली क्रिएट किया, मतलब नींव डाली नहीं ढंग से और बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। एक हुआ था ना किधर तो भी मुंबई में कि थाने में 6 महीने में बिल्डर ने बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, मल्टी स्टोरी 10 मंजिली बिल्डिंग थी, वो बना के खड़ी कर दी और वो गिर गई, कितने लोग मर गए थे उसमें। सो क्या हो गया कि वो क्या हुआ, बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर के तुमने जो है बिजनेस का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो उसमें क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, चलो तो अब इस हिसाब से यहां पे हम जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। A company is considered to be overcapitalized when actual capitalization is lower than proper class capitalization as warranted by earning capacity. तो जितना कैपिटल होना चाहिए था अगर मैंने उससे कम लगाया तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन है कि अंडर कैपिटलाइजेशन? अंडर कैपिटलाइजेशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बोथ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन आर डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, दोनों से ही जो है नुकसान होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन होगा तो ROI कम हो जाएगा, और अगर अंडर कैपिटलाइजेशन होगा तो भी बिजनेस की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक, सो क्या हो गया, पहला वाला ए तो गलत है क्योंकि उसमें फर्स्ट को ट्रू दे दिया। ठीक, और जो सी है उसमें सेकंड फॉल्स हो गया तो वो भी गलत हो गया। डी है उसमें फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा बचता है, बी। सो बी इज द आंसर हियर। ठीक है, देन अब इसके बाद में क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में व्हाट इज हियर कि यहां पे उन्होंने हमारे को क्या दिया हुआ है, critical assumption of net operating income approach to valuation is that debt and equity levels remain unchanged। क्या ये assumption है net operating income approach का? cost of debt and cost of equity remain constant, क्या ये assumption है? नहीं है ये assumption net income approach का। ठीक है, then that dividend increased at a constant rate। then C, the KO, that KO remains constant regardless of the change in leverage। लिवरेज मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, तो क्या ये वाला अजम्पशन सही है? सही है, तो ये सी इज द आंसर। डी, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड टैक्स इंक्लूडेड इन कैलकुलेशंस, वो नहीं है। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी अडॉप्टेड टू अवॉइड नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। सो अगर हमने ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हो गया तो उसका उसके नेगेटिव इंपैक्ट है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी अडॉप्टेड टू अवॉइड नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। द शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी स्प्लिट अप, दिस विल reduce dividend per share, though the EPS shall remain unchanged। ठीक, सो यहां पे क्या होगा, अगर तुम शेयर्स को स्प्लिट कर दोगे, ठीक, ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया, अगर तुमने शेयर्स स्प्लिट कर दिए तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो क्या डिविडेंड पर शेयर कम होगा? आंसर इज यस, डिविडेंड पर शेयर कम होगा, बट ईपीएस भी तो कम हो जाएगा ना। जब तुम डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दोगे, तो हमारा ईपीएस भी कम हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर बेसिकली व्हाट, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हमारी एंट्री क्या होती है बोनस शेयर्स के लिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज द बेसिक एंट्री। ठीक है, दो पार्ट में होती है बट ये नेट एंट्री यही है। तो क्या बोनस शेयर्स इशू होने से क्या हमारे कैपिटल पे कोई फर्क पड़ता है?
नहीं पड़ता, टोटल कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, इट डजंट चेंज एट ऑल। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा। रिवाइजिंग अपवर्ड द पार वैल्यू शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब ये क्या है, शेयर्स का कंसोलिडेशन है बेसिकली। मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, 10 शेयर को मिला के 100 रुपए का एक शेयर कंसोलिडेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से कोई फर्क पड़ता है क्या कैपिटल स्ट्रक्चर पे? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ना कैपिटल स्ट्रक्चर, किसी पे फर्क नहीं पड़ता। ना स्टॉक स्प्लिट से फर्क पड़ता है, ना रिवर्स स्प्लिट से कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल एम्प्लॉयड रिमेन्स सेम। ठीक है, देन रिडक्शन इन द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, यहां से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन में कैपिटल बढ़ गया। अगर तुम डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़ा दोगे तो तुम्हारी रिस्क बढ़ जाती है ना, फिर उसमें रिटर्न भी कम हो गया, रिस्क भी बढ़ गई। तो अब क्या है कि अगर रिटर्न कम हो रहा है तो रिस्क भी अगर कम हो तो चलेगा ना। ठीक, ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से हमारा रिटर्न कम होता है, ये बात तो पक्की हो गई। अगर रिटर्न कम है तो मेरे को रिस्क भी कम कर देना चाहिए ना। अब रिस्क मैं कैसे कम कर सकता हूं? रिस्क कम करने के लिए तरीका क्या है कि तुम अपना जो डेट कैपिटल है वो कम कर दो, तो रिस्क कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे द आंसर इज डी। बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन यहां पे? होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब होमवर्क प्रॉब्लम्स कौन से बचे हुए हैं यहाँ पे हमारे? ट्वेल्व बचा है। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ, इंडिफरेंस पॉइंट है। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और 26 तो हो गया था क्लास में। ये पी रेशियो वाला प्रॉब्लम है, मैंने करवाया ये प्रॉब्लम। 30, 36 और इससे बीच के सारे हो गए। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 36 फ्रॉम क्लास प्रॉब्लम्स। ठीक है, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इससे पहले कल थोड़ा सा वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवाइज करके लेते हैं। ठीक है, फाउंडेशन में पढ़ा था, पढ़े हुए टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा वो एकदम से फॉर्मूलेज रिकॉल नहीं होता है, तो एक बार सब वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकॉल कर लेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।